Good morning, students. Today we are going to study this chapter. The title of the chapter is Gillu. So, Gillu, this story has been written by Mahadevi Verma, the famous Hindi story writer. So, we are going to study Gillu Mahadevi Verma. Mahadevi Verma from 1907 to 1987 was a leading poetess of the छायावादी स्कूल ऑफ पोइट्री इन हिंदी। वो छायावादी युग की एक मशहूर कवयित्री थी हिंदी में, कवयित्री। शी वॉज ऑल्सो अ वेल नोन स्टोरी राइटर एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद। वो हिंदी वीकली, हिंदी साप्ताहिक चांद नामक पत्रिका की एडिटर भी थी, संपादिका भी थी। Some of her important works include दीप शिखा, यामा, निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार। She was the recipient of मंगला प्रसाद प्राइज, भरत भारती अवार्ड and the ज्ञानपीठ अवार्ड along with पद्म भूषण. She was elected fellow of the Sahitya Academy. So she had been awarded so many awards. Really, she was a very famous personality in India. So this story has been taken from her writing. Work in small groups and discuss the following. Do you like stories? Why do you like stories? Tell any story on love between man and animal. Surely this story is about the love between man and animal. ये कहानी आपको मैन और एनिमल, मनुष्य और पशु के बीच में जो प्रेम है उस पर आधारित है। सो दिस स्टोरी इज गोइंग टू शो, ये कहानी आपको साबित करेगी इंसान और पशुओं में भी प्रेम संभव है। तो ये हर जीव में, हम में तुम में खरक खंभ में सब में व्यापे राम, मतलब हर जगह हर चीज़ में प्रभु रहते हैं, हर चीज़ में आत्मा है, जीव है, तो हर जीव से प्रेम संभव है। सो महादेवी वर्मा ने इस कहानी में पशु प्रेम को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। सो वी आर गोइंग टू रीड द स्टोरी नाउ लाइन बाय लाइन। अब हम लोग इस कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, माइक्रो टीचिंग करेंगे, ताकि हम लोग हर प्रश्न का आंसर एग्जाम में दे सकें, सो दैट we may be able to answer all the questions in the examination, which will help us to get good marks in the exams. So be ready, take pen or pencil in your hands, and then we are going to start this study of this story line by line. Gillu. Unexpectedly, one morning when I entered the veranda, from the room I saw two crows playfully poking their beaks at the flower pots if engaged in the game of hide and seek. एक दिन जब मैं रूम से बाहर आई वरांदा पर, तो मैंने दो कौओं को खेलते हुए देखा। खेल के रूप में अपनी चोंच को फ्लावर पॉट में मारते हुए देखा। मुझे लगा कि वे लोग हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं। देन सडनली माई assiduous critique of this mythical tale of the crow was intercepted by my gaze that fell on this tiny being lying hidden. और तभी मेरा ध्यान, मेरा सीरियस गहन चिंतन जो मैं कौओं के ऊपर कर रही थी, डिस्टर्ब हो गया और मेरा ध्यान गया वो एक जीव पर जो नीचे पड़ा हुआ था, छुपा हुआ था। गैप एट द जंक्शन ऑफ द पॉट विथ the wall. Moving closer, I saw that it was a tiny baby squirrel. मैं नज़दीक जाकर के देखी तो मुझे मिला कि वहाँ एक गिलहरी है, छोटा सा गिलहरी का बच्चा। That must have accidentally fallen down from the nest. वह दुर्घटनावश अपने घोंसले से गिर गया नीचे, and was now being considered by the crows to be an easy prey. और कौओं के द्वारा अब वह आसान शिकार समझा जा रहा है। Having sustained 2 wounds due to the assault by the pair of crows was enough for this tiny being, and he was now motionless, clinging to the pot.
और कौवों के द्वारा अचानक हमले से घायल होकर के 2 घाव उसके बॉडी पर बन गए और वह गतिहीन सुस्त होकर के जमीन पॉट्स पर क्लिंगिंग कर रहा था, चिपका हुआ था। Then everyone remarked that as he would not survive after having been so assaulted by the crows, he be left alone, but my mind refused to accede to their views, and therefore I gently lifted him up and brought him to my room, and after wiping the blood from his wounds with cotton wool, applied penicillin ointment. लोग बोले कि अभी बचेगा नहीं, इसके ऊपर घाव है बॉडी के ऊपर। मैंने लोगों की बात को इग्नोर किया और आई उस छोटे से नन्हे जीव के शरीर के खून को साफ़ किया पोंछ करके, और उसके बाद कॉटन ऊल का रस्सी बना करके उसके घावों को साफ़ किया कॉटन से, ऊल से, एंड पेनिसिलिन मलहम ऑइंटमेंट उस पर लगाया उसके घाव पर। I tried to feed him by some putting a thin cotton wool wick, और कॉटन ऊल का ये धागा बना करके उसमें दूध में डुबा करके उसको पिलाने का प्रयास किया, उसको मुंह में डालने का। Dipped in milk to his mouth, but he was unable to open his mouth, and the drops of milk only slid down from both sides. और लेकिन वो पी नहीं पाया और दूध की बूंदें उसके मुंह के दोनों तरफ से बह गईं। Only after several hours of tending could I manage to pour 1 drop of water in his mouth. घंटों तक मेहनत करने के बाद मैं उसके मुंह में एक बूंद डालने में सफल हुई। But on the 3rd day he became so much better and assured that he would use his 2 tiny claws to hold my finger and gaze all around with his blue glass beads like eyes. लेकिन नेक्स्ट डे वह बहुत ही स्फूर्ति में आ गया और दोनों पंजों से वह मेरी उंगलियां पकड़ता था और अपनी चमकदार नीली नीली आँखों से मेरी तरफ देखा करता था। एंड इन 3-4 months ही एस्टोनिश्ड एवरीवन विथ हिज स्मूथ फर, बुशी टेल एंड नॉटी रिफल्जेंट आइज। और 3-4 महीनों में ही वह सबों का आश्चर्य होता था उसको देख करके, क्योंकि उसके स्मूथ फर हो गए, रुआं उसका बहुत चिकना हो गया, बुशी टेल झाड़ू की तरह उसकी पूंछ हो गई, और उसका नटखटपन और चमकदार आँखें उसकी पहचान बन गई। ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फॉलोड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, परिवर्तन हो गया उसका। वह गिलहरी जो कॉमन नाउन में थी, उसका हमने एक नाम का रख दिया। नाम रख देते हैं किसी चीज़ का तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे गाय, और गाय का कोई नाम रख देंगे तो प्रॉपर नाउन हो गया। पहाड़ कॉमन नाउन है और उस हिमालय कहेंगे तो प्रॉपर नाउन हो गया। रिवर कॉमन नाउन है और उसको गंगा कहेंगे तो प्रॉपर नाउन हो गया। इन द सेम वे दिस थिंग हैपेंड देयर, दैट बर्ड, दैट थिंग, दैट एनिमल named Gillu became a proper noun because Gillu was given him the name. I hung a lightweight flower basket lined with cotton wool on the window. मैंने उसके विंडो के ऊपर फ्लावर बास्केट हल्का था उसको डाल दिया विद द हेल्प ऑफ ए वायर, एक तार लगा के। फॉर 2 years दिस वाज गिल्लू एबोर्ड। 2 साल के लिए यह गिल्लू का घर हो गया, निवास स्थान हो गया। ऑल वेयर प्लीजेंटली एस्टोनिश्ड एट हिज एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट। सभी लोग उसके नटखटपन पर और उसकी बुद्धि से पर आश्चर्य करते थे, खुश थे। प्लीजेंटली एस्टोनिश्ड मतलब आश्चर्यचकित होना, प्लीजेंटली मतलब खुशी खुशी। When I would sit down to write, he would be seized by such an acute desire to attract my attention that he devised a novel way of doing it. जब मैं लिखने बैठती थी तो मेरी तरफ बड़े ही ध्यान से देखता था और मेरा ध्यान आकर्षित करने का उसने एक नया तरीका ढूंढ लिया। He would venture close to my feet so swiftly up and curtains and descend with the same breakneck speed. वह बहुत ही तेज गति से वह जाता था, पर्दा के पीछे छुप जाता था और फिर आता था। ये काम करता था मेरा ध्यान खींचने के लिए। This sequence would continue till the time I got up to catch him. यह तब तक होता रहता था जब तक मैं उसको अपने हाथ से पकड़ती नहीं थी। On some occasions I used to hold
गिल्लू एंड पुट हिज टाइनी बडी इन ए लॉन्ग एनवेलप। कभी कभी मैं उसके छोटे बडी को पकड़ करके बड़े से एनवेलप में लिफाफा में डाल देती थी। Sometimes she would continue to stand on the table leaning against the wall in such an amazing condition for hours। कभी कभी वह टेबल पर खड़ा होकर दीवार पकड़ के खड़ा हो जाता था घंटों तक। एंड वॉच माई एक्टिविटीज विथ हिज रेडियंट आइज, और अपनी चमकदार आँखों से मेरी कार्यवाही को देखता रहता था। देन क्वेश्चन आंसर। My dear friends, we are going to do question answer now so that you may not feel any difficulty in answering the questions when they would come in the examination। बिहार बोर्ड के पढ़ने वाले भाइयों, आप लोगों को बहनों, आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती है अंग्रेजी में। अंग्रेजी का आप लोग महत्व उतना देते नहीं हैं, फिर भी अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने से भाषा का विकास होता है और यह एक बहुत अच्छी भाषा है, इसमें कोई शक नहीं है। और सभी शहर के लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में अंग्रेजी की पढ़ाई होती है। बिहार बोर्ड में अंग्रेजी का उतना महत्व नहीं है, आप भी इग्नोर करते हो। इग्नोर करने से आपका भला होने वाला नहीं है, इसलिए इसको पढ़िए, ध्यान से सुनिए। और सारा चैप्टर पढ़ाने के लिए मैंने वीडियो बनाया है, एक एक करके सारा चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा, हिंदी में बता दूंगा, क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। आपको एग्ज़ाम में पूरा का पूरा नंबर आएगा, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए और एक वर्ड को भी मिस नहीं कीजिए। हाउ डिड गिल्लू सस्टेन वुंड्स, गिल्लू को घाव कैसे हुआ, ये क्वेश्चन है। तो घाव ऐसे हुआ कि घोंसला में से नीचे गिर गया। ही फेल डाउन फ्रॉम हिज नेस्ट एंड टू क्रॉज अटैक्ड हिम एंड दे मेड 2 wounds on his body। ही बिकेम सेंसलेस। सो बाय दिस वे गिल्लू गॉट सस्टेन्ड wounds। सस्टेन माने कैसे उसको हुआ। हु स्टार्टेड कॉलिंग द टाइनी बेबी स्क्वेरल एज गिल्लू, किसने कहना शुरू किया उसको गिल्लू। तो ये महादेवी वर्मा आवर राइटर हैज स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू। गिल्लू वाज गिवन द नेम टू दैट स्क्वेरल। विच ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड ऑन द वुंड्स ऑफ द टाइनी बेबी स्क्वेरल, कौन सा मलहम उस नन्हे से गिलहरी के बदन पर घाव पर लगाया गया। तो वो था, ऑइंटमेंट का नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का मलहम उसके घाव पर लगाया लेखिका ने। What does the transformation from the common to the proper noun imply? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब परिवर्तन, कॉमन मतलब जनरल, से प्रॉपर मतलब खास बनाया गया। किसको, जब वो गिलहरी का नाम गिल्लू रख दिया गया, तो वह जब गिलहरी थी, स्क्वेरिल थी, जातिवाचक थी, तो कॉमन नाउन थी। और जब उसको प्रॉपर नाउन बना दिया, मतलब उसका नाम दे दिया, तो कॉमन से वह प्रॉपर हो गया। यही मतलब है, यही है कॉमन टू द प्रॉपर नाउन इम्प्लाई। इम्प्लाई मतलब यही मतलब है कॉमन से प्रॉपर बनाने का, बिकॉज ही वॉज गिवन अ नेम। व्हाट डिफरेंस डज ए नेम मेक? ए नेम गिव्स ए पर्सन, अ थिंग, अ बीइंग, एन आइडेंटिटी। ये नेम देने से किसी के जीवन में उसकी पहचान बन जाती है। सो नेम गिव्स यू एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी परिचय, पहचान। Okay, after that we will start second part of this video. So I want to finish this video here. This is part 1, and for part 1 start viewing, continue viewing, it will help you very much. So my dear friends, I am going to end this video here, and part 2 will come very soon for you. So continue viewing. Have a nice day. Thank you.